Good morning, class 7th. Till now, we have discussed that how the Cholas shifted their capital from Urayur to Thanjavur, and they were specialized in making of bronze sculpture, as well as they made splendid temples in South India. Okay, now today we'll discuss about the agriculture and irrigation of Cholas. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Cholas made various developments in agriculture, especially. Look at map 2 again. Okay, here is the map 2. Here we can see that Kaveri River branches off several small channels before emptying into the Bay of Bengal. Yes, so these channels overflow frequently. इन channels में क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी बार इसमें बाढ़ आ जाती है, ओवरफ्लो होते हैं ये, डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स. सो इससे क्या होता है, फर्टाइल सॉइल जो होती है वो के बैंक्स के पास डिपॉजिट हो जाती है. वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर एंड पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस. एंड ये जो सॉइल और ये जो सारा वाटर है, ये राइस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है. सो मॉइस्चर यहाँ पे मिल जाता है इनको. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions. Forest भी clear करते थे. Land had to be leveled in other areas. Other areas में land को level करते थे. See, so many things they were doing in the field of agriculture to develop it. और इधर डेल्टा रीजन में भी क्या करते थे, इन द डेल्टा रीजन embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. Embankment means a long mound or long hill built for the purpose of holding water. वाटर को होल्ड करने के लिए, एक्सेस वाटर को वहां से बाहर जाने के लिए रोकने के लिए, बाहर जाने से रोकने के लिए एक जो और बहुत ऊंची सी हिल बना दी, या और इस तरह से कुछ भी डैम वहां पे बना दिया. उससे क्या होगा, टू प्रिवेंट फ्लडिंग, जिससे कि फ्लड जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी. एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स. इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर. और एक साल में 2 क्रॉप्स आती थी, एक सर्दी में और गर्मी में. इन मेनी एरियाज, many cases it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation work requires planning, organizing, labor and resources. क्योंकि जो इरिगेशन वर्क है वो ऐसे नहीं कर दिया जाता, उसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए होती है. ठीक है, प्लानिंग करने के बाद में उसमें सारे रिसोर्सेज असेंबल किए जाने होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनकी सबको अरेंजमेंट किया जाता है. ठीक है, लेबर और रिसोर्सेज का. देन मेंटेनिंग दीज वर्क एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड. और इन सभी बातों पे भी डिसाइड करना होता है, वाटर कैसे शेयर होगा, कौन कौन से रीजन को, कौन कौन से एरियाज में वाटर शेयर किया जाएगा, किससे नहीं शेयर किया जाएगा. जो जैसे जो फ्रेंडली स्टेट नहीं होगा उससे वाटर शेयर नहीं किया जाएगा. ओके, मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज. और चोला एम्पायर में, चोलास के टाइम में एवरीवन टुक इंटरेस्ट, rulers as well as peoples, in all these activities. Now the next topic is the administration of the empire. empire का administration कैसा था? Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. The village council and the Nadu performed several administrative functions. For this, I am showing you one flow chart. Okay. See,
Here in this flow chart, you can get easily that how the administration of Chola was. So whole Chola Empire was divided in Mandalam. Okay, then Mandalam further divided into Kotmar. Okay, then Kotmar like मंडलम तो जैसे अभी के ब्लॉक्स हो गए या रीजन्स कह लो, जैसे ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन और सेंट्रल रीजन. इस तरह से जैसे रेलवे के रीजन्स है ना, रेलवे के जोन्स हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, इस तरह से. कोटलम मीन्स स्टेट हो गए. देन कोटलम डिवाइडेड इनटू नाडूज. नाडूज उसके डिस्ट्रिक्ट हो गए. ओके, देन नाडूज डिवाइडेड इनटू विलेजेस, और विलेजेस को कुमारास कहते थे. ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी. अब हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, मींस विलेज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो 3 पार्ट्स में, 3 असेंबलीज में डिवाइडेड थी. और द सभा एंड द नगरम. तो द उर में तो सारे जो कॉमन विलेजेस थे वो आते थे. ओके, देन सभा में जो थे वो सारे लर्नेड ब्राह्मणास आते थे. और जो द नगरम जो असेंबली थी उसमें मर्चेंट, आर्टिजन एंड ट्रेडर्स आते थे. ओके, we have seen that Brahmanas often received land grants or Brahman Deya. As a result, a large number of Brahmana settlements emerged in Kaveri valleys as in other parts of South India. क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत सारी लैंड ग्रांट मिलती थी, ओके, वो पूजा या पाठ जो भी करवाते थे या ब्राह्मण डे मिलता था, तो उस वजह से कावेरी वैली के पास में बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज हुए, मीन्स डेवलप हुए वहाँ पे. ईच ब्राह्मण डे वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा of prominent Brahmana landlords. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. Associations of traders known as nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. और इनके जो ब्राह्मणों की जो सभा ये जो भी काम करती थी वो उनके सारे डिसीजंस इंस्क्रिप्शंस पे रिकॉर्ड होते थे. ओके, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरुपुर इन चिंगलपट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड. और चिंगलपट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में सभा कैसे ऑर्गेनाइज होती थी उसकी डिटेल्स दी हुई है. द सभा हेड, सभा में कौन होते थे? लर्नेड ब्राह्मणास. The Sabha had separate committee to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. और इन सभा में भी जो एलिजिबल होते थे, क्योंकि लर्नेड ब्राह्मण्स में से भी बहुत सारे जो एलिजिबल नहीं होते थे उनके नेम लिखे हुए नहीं होते थे, और ये नेम लिखे हुए होकर ये पाम लीफ पे लिखे हुए होते थे, और वो पाम लीफ एक अर्दन पॉट में रखी हुई होती थी. फ्रॉम विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट वन बाय वन फॉर ईच कमिटी. मींस चिट सिस्टम था, जैसे आपकी क्लास में भी चिट सिस्टम होता है ना, या जैसे कोई लॉटरी में चिट सिस्टम होता है वैसे. ओके, नाउ हियर इन दिस बॉक्स, हियर द rules are given to be a member of Sabha. So all those who wish to become members of the Sabha should be owners of land from which land revenue is collected. Okay, they should have their own homes. उनके खुद के घर होने चाहिए थे. They should be between 35 and 70 years of age. Means 35 years of age से जो below था उनको सभा का मेंबर बनना अलाउ नहीं था. They should have knowledge of the Vedas. They should be well versed in administrative matters and honest. If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of any committee. Okay, ये भी रूल था. Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election. और वो election भी नहीं लड़ सकता था जो किसी भी रिलेटिव या उसके खुद के जो अकाउंट है वो उसने अगर सबमिट नहीं किए हुए होते थे, मीन्स उसके पास कितनी लैंड है या और भी कौन कौन सी कितनी एसेट है उन सब का रिकॉर्ड नहीं देता था, तो वो कैन नॉट
contest the election, and election नहीं लड़ सकता था. So here your chapter ends. Okay students, thank you, have a nice day, God bless you.